أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام تعریف تہٕ حمد و ثنا ربی ذوالجلالس کُنتھ یم ربی ذوالجلالن اسہِ بیٚیہِ اکہِ ساتہٕ یتھ بابرکت مجلس منٛز شریٖک سپدنُک توفیٖق عنایت کوٚر اور بیٚیہِ ٲسِن بے شُمار درود و سلام برذاتِ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تہنٛدِس آلس تامتھ. پٔتمٮ۪ن درسن منٛز ووت اسہِ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامن ہُنٛد تذکرٕ پران اور پٔتمِس درسس منٛز پریو اسہِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن یا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامن ییٚلہِ پننہِ قومٕچ کُفرٕچ اطلاع گئی یا ییٚمہِ ساتہٕ تِمن پننہِ قومٕچ یۄس زن کج روی اور تہنٛد انکارُک پتہ لوٚگ تو انہوں نے اپنے جو حواری تھے ان سے کہا تھا کہ من انصاری الی اللہ. تو حواریوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے انصار ہیں یا اللہ کے دین کے مددگار ہیں. تم پتہ آو تمن ہند یہ زن صفت یا تمن انصارن ہز یم زن دعا سہ تہ آو نقل کرنے. آزچ یۄس زن آیت چھ ات مز چھ بی اکہ ساتنس وۄنۍ تذکرہ یہودن ہند. اللہ تبارک و تعالیٰ چھ ارشاد فرماون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. ییٚمہِ ساتن زن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامو پنٕنۍ دعوت بنی اسرائیلس برونٛٹھ کنیتھ تھٲو. بہرحال یم زن یہود ٲسۍ تو انہوں نے ان کی دعوت کا انکار کیا. یہودوں کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے دعوتوں انکار اور یہ در پہ لگ گئے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اور انہیں قتل کرنے کی اب وہ پلاننگ کرنے لگے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرمان وَمَكَرُوا. تو ان بنی اسرائیل کے یہود نے اور یم زن یہود ٲسۍ یا بنی اسرائیل کے جو یہ اہلی کتاب تھے انہوں نے خفیہ تدبیر کی. یعنی خفیہ تدبیر کس بات کی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی. ام برونٹھ اوسمو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام تہ قتل کورمت اور انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی قتل کیا تھا. تو وہ مکرو اب انہوں نے سازش اور خفیہ تدبیر کی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی قتل کرنے کی. اور سورہ بقرہ میں پوڑ اس کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق. یہود اتنی سرکش اور باغی قوم تھی کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کو بلا حق قتل کیا. تو انہی کا تذکرہ ہے وَمَكَرُوا. تو انہوں نے خفیہ تدبیر کی. کیا خفیہ تدبیر کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی. وَمَكَرَ اللَّهُ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کی تدبیر کے مقابلے میں تدبیر کر رہا تھا. یہاں اتن گژھِ اکھ کتھ روزٕنۍ ذہنس منٛز کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سن صفت چھا مکر کرن؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ خفیہ تدبیریں کرتا ہے؟ نہیں. البتہ یتن آو یہندس جوابس منٛز یہ وننہٕ بالکل تتھے پٲٹھۍ یتھ پٲٹھۍ سورہ بقرہس منٛز پوٚر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا منافقین متعلق یخادعون اللہ. یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دھوکہ دے رہا ہے. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن صفت چھا دھوکہ دیون نہ. یہ اصل میں یہود کے مقابلے میں یا ان منافقین کے مقابلے میں جو صفت ہے اس کا کاؤنٹر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے.
व मकरू और इन यहूद ने खुफिया तदबीरें की, व मकर अल्लाह और इसके मुकाबले में अल्लाह ने भी अपनी तदबीर चलाई। वल्लाहु खैरुल माकिरीन और अल्लाह सबसे बेहतरीन मकर करने वाला और खुफिया तदबीर करने वाला है। बहरहाल अमे आयतु क्या मतलब, रिवायात में आता है कि यम सातन हजरत ईसा अलैहिस्सलामो पन्ने अमि दाव इस्लाम दावत लुकन ब्रोट के थो, तो यहूद सबसे बढ़ चढ़ कर इसके मुखालिफ हो गए। सारे को ज्यादा मुखालिफ गए अमिस कुम यहूद। बिलखसूस जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सबत के दिन के बारे में तखफीफ की, तिकाज रात ही पोड़ कि ईसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें बताया था कि मैं अल्लाह की तरफ से मबूस करदा रसूल हूं और जो आप पर पाबंदियां थी मैं उनको हल्का करने के लिए आया हूं। तुम पाबंदियों मुझ पाबंदी कि वो सबत के दिन कोई कारोबार नहीं कर सकते थे, मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से ये पाबंदी उनसे हटा दी। ये पाबंदी कर के में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हुक्म से उन पे थोल। तो इन यहूद ने एक प्रोपागंडा किया, ये मकोर प्रोपागंडा ये किया कि ये वक्त के बादशाह के पास चले गए और वक्तुक बादशाह युजन ओस वो यहूदी नहीं था, सो यहूदी बल्कि वो नसारा में से था। तो प्रोपागंडा ये किया तिकाज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत शाम में फैलाई, यानी शामस मज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और शाम का जो हुक्मरान था वो यहूदी नहीं था बल्कि वो क्या था, नसारा। तो ये वक्त के इस बादशाह के पास चले गए और अम सिंध कान बरिक प्रोपागंडा कोरस दोपस आप नहीं जानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये यहूदों के मजहब में मुदाखलत करता है और ये तौरात में तहरीफ करता है। ये तौरात में क्या करन तहरीफ, और सबत के बारे में इसने बिल्कुल ही अहकाम बदल डाले। यीशु वह नो कथा वनन। तो इस तरह से इन्होंने प्रोपागंडा किया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ, बिल्कुल तिथे पठन यिथ पठन आज ते दुनिया में वुचन। जब कोई हक लेकर आता है तो बातिल की ये कोशिश रहती है कि किसी न किसी तरीके से इस हक को दबाया जाए। बहरहाल प्रोपागंडा शुवन करन मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है या बाकी जराया अबलागन करने इस्तेमाल कि किसी तरह से हक को दबाया जाए। यही तरीका अज़ल से चला आ रहा है और यह तरीक़ों अपनो कमो यहूदो यम गए बादशाह निश और उसके कान भर दिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नोई दीन मनन, ये यहूद के दीन में तहरीफ करता है और तौरात में तहरीफ करता है। बहरहाल एक नहीं कई बार ये इस बादशाह के पास गए, एक लट करे बादशाह अनसुनी, दम लट कर अनसुनी, मगर जब ये बार बार चले गए तो इन्होंने बादशाह को इस बात पर मजबूर कर दिया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार किया जाए, कि ये क्या कर गिरफ्तार। बहरहाल कहा जाता है रिवायत मुझे आमुद कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो हवारी थे इनमें से एक हवारी गद्दार निकला। हवारी क्या गद्दार। इन्होंने इन यहूद को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पता बताया कि फलानी पहाड़ी पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रहते हैं। बहरहाल ये गो उमन सद हुकूमत के कारंदों को साथ लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कैद किया गया या करने गिरफ्तार। बल्कि रिवायात में आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उस वक्त इस हवारी ने जोर का थप्पड़ मारा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और इन हुकूमत के कारिंदों ने घसीट कर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इस हुक्मरान के पास पेश किया। बहरहाल यम सातन ये आओ पेश करने गिरफ्तार करने तो यहूद ने फिर से साजिशें की कि कुछ पठन गैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सजाई मौत दिन, यानी इसे फांसी पर चढ़ाया जाए। बहरहाल यम सातन ये वक्त मुतय्यन गो और इन्होंने बिल्कुल इसमें कोई कसर न छोड़ी और हुक्मरान युजन वक्त बादशाह उस ये मजबूर हो गया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दे दी जाए। बहरहाल यम सातन यह कैद खानस में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कैद ओस, इन्हें लाने के लिए इसी हवारी को भेजा गया, यानी अंदर आओ सोजन कुस यह हवारी। तो रिवायात में आता है और कुरान की आयात भी इस पर गवाह है जो हम पढ़ेंगे कि यम सातन ये और अंदर चाव अल्लाह का करना, यही है वो मकरू कि इन्होंने खुफिया तदबीर की। किन्होंने? यहूद ने इस हवारी के साथ मिलकर, जिसे बहुत सारा पैसा और बहुत सारा लालच दिया गया था, तो इन्होंने ये खुफिया तदबीर की हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की।
मगर अल्लाह ताला फरमाए व मकर अल्लाह, मगर अल्लाह ने भी एक खुफिया तदबीर की। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे खुफिया तदबीर बेहतरीन तदबीर करने वाला। तो क्या हुआ, ये साथ ये हवारी अंदर गो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सही सलामत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहाँ लिया, आसमानों पर लिया, और इस हवारी की शक्ल हूबहू हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुशाबह कर दी। बल्कि इसका जिक्र सूरह इस निसा में भी है। अल्लाह ताला फरमावन कि वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलल्लाह, इनका कहना है, किनका कहना है, यहूद का कहना है, इन्ना क़तलनल मसीह। अब देखिए कुछ सरकश बागी कौम फख्र से ये कहते हैं इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम, कि हमने मसीह को यानी ईसा इब्न मरियम को क्या किया, कत्ल किया, रसूल अल्लाह, जो कि अल्लाह का रसूल था। अल्लाह ताला फरमान वमा क़तलूहु, हरगिज इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया, वमा सलबूहु, हरगिज इन्होंने इसे फांसी पर नहीं चढ़ाया, वलाकिन शुब्बिहा लहुम, बल्कि उनके लिए ये मामला मुश्तबह किया गया। क्या मुश्तबह किया गया, यानी इनके इस हवारी की शक्ल हूबहू मुशाबह कर दी गई, किसके साथ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया, बिल्कुल आसमानों में ले जाया गया उनको। ये पढ़ो कि वही जिक्र। अच्छा, जब यह हवारी बाहर आया, बहरहाल यली नबर आओ, ये लजो उमर इतला दिन की ईसा वहां नहीं है, वो फरार हो गया है, क्योंकि सुबह ओसी तक उनको अल्लाह तबारक व तआला ने सही सलामत जसद और रूह के साथ लिया था आसमानों पर। अभी हम पढ़ेंगे कुरान, वो कहता है जब ये बाहर आए तो लोगों को जो उनका इंतजार कर रहे थे, यहूदन हिंद बड़े बड़े कारंदे हुकूमत के कारंदे थे, उन्होंने समझा कि ईसा बाहर आ गए हैं खुद ब खुद, तो इन्होंने इसी शख्स को फांसी पर लटकाया। हालांकि ईसा नहीं थे, बल्कि कौन थे, ये वही हवारी थे जिन्हें लालच देकर इन्होंने ईसा की गिरफ्तारी में इस्तेमाल किया था। तो यही अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम, बल्कि इनके लिए इस मामले को क्या किया गया, मुश्तबह किया गया। तो यही जिक्र अल्लाह तबारक व तआला फरमान कि व मकरू व मकर अल्लाह, इन्होंने खुफिया तदबीर की थी ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की, हालांकि वह मकर अल्लाह, अल्लाह भी अपनी खुफिया तदबीर चला रहा था। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और सबसे बेहतरीन खुफिया तदबीर चलाने वाला कौन है, अल्लाह। और यही वो खुफिया तदबीर थी जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इस बरगुज़ीदा पैगंबर को सही सलामत बस या क्या रूह और जसद के साथ आसमानों पर ले लिया, और वहां से फिर उनके बदले शबाहत बदल दी गई उस हवारी की, और वही उनके बदले कत्ल हुआ। और याद गस्थाउन एम पत यजन आयत, ये इंतहाई अहम आयत है हमारे अकीदे के सिलसिले में। अल्लाह ताला फरमावन कि इज़ क़ालल्लाहु या ईसा, इज़ क़ालल्लाहु, याद करने के लायक वो वक्त, याद थाउन लायक सु वक्त यम सातन अल्लाह तबारक व तआला वोन केमिस ईसास, या ईसा, ए ईसा, इन्नी मुतवफ़ी का, बेशक हम आपकी मुद्दत को मुकम्मल करेंगे। और याद है जो इन्नी मुतवफ़ी का युज़न तर्जम छ, इसका सभी मुफस्सिरीन ने तर्जमा किया है कि हम आपकी मुद्दत रिसालत को मुकम्मल करेंगे। यानी उनकी मुद्दत रिसालत उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी, 33 साल ओतर में, यम सातन जन तिहिर की आय क्या दिन, हालांकि उनको फांसी कुरान कहता है। तो अल्लाह ताला फरमान कि वइज़ क़ालल्लाहु या ईसा, याद करने के लायक वो वक्त है जब अल्लाह ने ईसा से कहा, या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का, ईसा अब मैं तुझे वापस ले लूंगा। यानी ये तो मुतवफ़ी ये लफ्जी तर्जम वफात के। अच्छा, कोई अब ये शुबा कर सकता है कि मुतवफ़ी युज़न ये मतलब है कोई वफात करे, आपने क्यों तर्जमा इसका किया कि जब हम आपको क्या ले जाएंगे, वापस ले जाएंगे। अमुक तर्जम अम सब मुफस्सिरीनो कोरमुत वापस ले जाएंगे, तिकाज हदीस अत कथ पे गवाह कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मौत तारी नहीं हुई। और दूसरा कुरान की आयात भी इस पर गवाह है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमान वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम। तो इसीलिए यहाँ पर इसका तर्जमा मैंने किया कि याद करने के लायक वो वक्त है जब अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा से कहा इन्नी मुतवफ़ी का, कि हम आपको पूरा पूरा वापस ले जाएंगे, व राफ़िउ का, और आपको उठाएंगे, इलैया अपनी तरफ,
व मुत्ताहिरों का, और आपको पाक करेंगे, मिनल लजीना कफरू, उन लोगों से जिन्होंने कुफर किया, व जाइलुल लजीना तबऊ का फौकल लजीना कफरू, और हम बनाएंगे उन लोगों को, तबऊ का जो आपकी इत्तिबा करेंगे, फौकल लजीना कफरू, उन लोगों के ऊपर, यानी उन्हें गलबा अता करेंगे उन लोगों के ऊपर, कफरू जिन्होंने कुफर किया, इला यौमिल क़ियामा, क़ियामत तक। अच्छा, सुम्मा इलैया मर्जिउकुम, फिर सभी को और फिर लौट कर आपको मेरी ही तरफ आना है, फअहकुम बैनकुम, तो हम फैसला करेंगे आपके बीच में, फीमा कुंतुम फी तख्तलिफून, जिन बातों के बारे में ये इख्तिलाफ करते थे। बहरहाल ये लंबी आयत है, इसका सिर्फ एक टुकड़ा आज हम मुकम्मल करेंगे, इसको गोडनिक टुकड़ा। अल्लाह ताला फरमान, इज़ क़ालल्लाहु या ईसा, याद करुन लायक से वक्त अल्लाह तबारक व तआला ईसा अलैहिस्सलाम बोल, इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, कि बेशक हम आपको पूरा पूरा लौटाएंगे। अच्छा, इन्नी मुतवफ़्फ़ी मतलब गो लौटाना, याद हो जाओ कुरान पाकस मज ये लफ्ज तवफ़ा, मुतवफ़्फ़ी, वफा या वफात, ये दो माना में इस्तेमाल हुआ है। एक ये आया है मौत के लिए, यानी यम सातन कस वफात गसन, और हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं कि फलान शख्स हसा गई क्या वफात, तो उससे मुराद क्या है कि यानी उसकी रूह कब्ज कर ली गई। ब्याख वफा गो पूरा पूरा लौटाना या पूरा पूरा बदला देना। अच्छा, ये तर्जम कत कोर, हमने सूरह बकरा में पढ़ा, इन्नल्लाह मुतवफ़्फ़स साबिरीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला पूरा पूरा बदला देगा, पूरा पूरा लौटाएगा, किनको? साबिरीन को। तो यहाँ पर वफा का लफ्ज आ गया तो किसका माने में इस्तेमाल हो गया? पूरा पूरा लौटाना, यानी पूरा वापस दुन। तो इन्नल्लाह युतवफ़्फ़स साबिरीन, अल्लाह पूरा बदला देगा, पूरा जजा देगा, पूरा लौटा देगा अपना जजा, किनको? साबिरीन को। और उर्दू में इस्तेमाल करन कि एम हसा कोर पूर वफा केमिस, इसने पूरा वफा का हक अदा किया, या एम हसा कोर वफा हमिस शख्स, क्या वफा की, यानी इसने पूरा पूरा जजा लौटा दी। तो यहाँ पर भी वही लफ्ज का माना होगा कि इस क़ालल्लाहु या ईसा, याद करने के लायक वक्त है जब अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, बेशक हम आपको क्या करेंगे? लौटाएंगे। इस लौटाओ तो है पूर पूर, व राफ़िउ का, और हमने उनको क्या किया? उठाया। तो लौटाएंगे पूरा पूरा का मतलब क्या है? आखिर जमाने में जब हम आपको पूरा पूरा लौटाएंगे कुर्ब क़यामत में, व राफ़िउ का, और हम आपको उठाएंगे, यानी कहाँ की तरफ? इलैया, अपनी तरफ, व मुत्तहिरुका मिनल लज़ीना कफ़रू, और हम आपको पाक करेंगे उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया। बहरहाल रवायतन मुझे आमुद हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमो, वो रिवायत में दोबारा नहीं दोहराऊंगा कि आखिर ज़मान के निशानियों मुझे आख निशानी दज्जाल का ज़हूर, फिर हजरत मेहदी भी आएंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल भी होगा। और मैं वो तम सातनस कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गसन दमिश्क की जामिया मस्जिद जो होगी उसके मशरिकी गुंबद, जो सफ़ेद गुंबद होगा, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम के सहारे से वो उस पर नाजिल होंगे। असर का वक्त होगा, अकामत भी हो चुकी होगी, हजरत मेहदी उस वक्त इमामत कराएंगे, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का क्या होगा? नुज़ूल होगा। तो ये हमारा अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये कत्ल या सिले पर नहीं चढ़ाया गया, बल्कि वो जिंदा आसमानों पर ले जाए गए। हदीस भी इसकी गवाह है, और कुरान पाक में आयत यज़म सूरह निसा आयत नंबर 157 पे 159 तक उनमें भी लिखा गया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सही सालिम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहाँ लिया है? आसमानों पर। अच्छा, अब यहाँ पर इसके सबूत में क्या अक्सर लोग इसमें मुगालता खाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अच्छा, इसकी आयत की तफसीर में युजन कज़्ज़ाब और दयूस है, वो हजरत ये इसका नाम युजन ये मिर्जा कादियानी, उसने इस आयत की तफसीर में इस आयत का तर्जमा किया है कि इस क़ालल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, कि याद करो वक्त जब ईसा अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने कहा कि हम आपको मौत देंगे, और फिर वो कहते हैं कि मेहदी और जो दूसरा मसीह आएगा नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक बुई। तो इसलिए यहाँ पर इसमें पूरा इस्लाम मुसलमान का चाशनी अकीद कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मौत तारी नहीं हुई, उनको फांसी नहीं दी गई, बल्कि वो अल्लाह के यज़न हुक्म से और अल्लाह की मर्जी से वो कहाँ पर ले जाए गए? आसमानों पर ले जाए गए। बहरहाल आयत नंबर 159 में वो पढ़ूंगा।
اللہ تعالیٰ فرمان کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا قرآن سے بالکل کیٹاگورک ونن کہ نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ تو انہوں نے اس کو یہ سولی پر چلا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ بلکہ ان کے لیے اس معاملے کو کیا کیا گیا مشتبہ کیا گیا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا یعنی اللہ تعالیٰ بھی ون وما قتلوه یقینا یقیناً تحقیق انہوں نے اسے قتل نہیں کیا بل رفعه اللہ الیہ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اٹھا لیا کہاں کی طرف اپنی طرف آسمانوں کی طرف وکان اللہ عزیزا حکیما اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے زبردست کیا ہے یعنی اللہ یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ کسی بندے کو بجسد روح اور جسد کے ساتھ وہ کہاں لے جا سکتا ہے آسمانوں میں لے جا سکتا ہے حکیمہ اور اس میں حکمت بھی ہے حکمت کیا ہے کہ وہ آخری دور میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی قیادت کرنے کے لیے آئیں گے اور جب ہم یہ پڑھا نا یہ سورہ آل عمران جب ہم مکمل کریں گے وہاں ہم پڑھیں گے کہ جب یم ساتن عالم ارواحس میں ساری لوگ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر دو اقرار لیے ہیں لوگوں سے ایک اقرار ہے الستو بربکم کیا میں تمہارا رب ہوں سبھی لوگوں نے کیا کہا تھا قالوا بلا کہ آنا تو چھک یہ اقرار کن سے لیا گیا تھا یا ننکمن نش تمام لکن نش مگر ایک اور اقرار لیا گیا ہے آیت نمبر 179 جب ہم پڑھیں گے آل عمران میں وہ تمام نبیوں سے لیا گیا تھا یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان سے ایک عہد لیا گیا تھا وہ عہد کیا تھا عہد یہ تھا کہ میں آخر پر ایک نبی بھیجوں گا جس کا نام ہوگا جناب محمد رسول اللہ اور سبھی انبیاء سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ اگر آپ کے زمانے وہ آیا تو آپ اس کی تائید اور اس کی نصرت کرنا تمام انبیاء نے کہا تھا قالوا بلا اقررنا ہم نے اقرار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان اقررنا ہم نے بھی اس بات پر اقرار لیا اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ ساری نبی اقرار نیو کم سن نصرت اور کم سن مدد خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے تو پھر ان تمام انبیاء کی طرف سے جو نمائندہ مقرر ہوئے وہ نمائندہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کے نام یہ قرآن نکلا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر لیا تاکہ وہ دوبارہ تمام انبیاء کی اس اقرار کے بدلے میں وہ اس کا حق ادا کرے وہ ہم پڑھیں گے آیت میں اچھا اللہ تعالیٰ فرمان اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 159 فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا تو اللہ تعالیٰ فرمان وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اب کن سے کہا جا رہا ہے اہل کتاب یہ یہود کا تذکرہ ہے اس سورہ نساء میں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور ان اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہیں بچے گا الا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ جو کہ اس عیسیٰ پر ایمان نہیں لائے گا موت سے پہلے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اور وہ قیامت کے دن ان کے بدلے میں گواہی دے گا یعنی قرآن پاک چ آیت چ ونن کہ اہل کتاب مز یعنی یہودوں مز بچن اخ انسان تہ توتان روزن جو کہ عیسیٰ پر ایمان نہیں لائے گا اب بتائیے جب عیسیٰ کو انہوں نے اپنے لحاظ سے اپنے زعم کے مطابق انہیں پھانسی پر چڑھایا کیا سبھی اہل کتاب نے سبھی یہود نے اس پر ایمان لایا تھا نہیں اس کا مطلب ہے ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ سبھی اہل کتاب کس پر ایمان لائیں گے عیسیٰ یہ کب ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ یہ ساتھ انسان عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ یاجوج ماجوج کا فتنے کا کلا کما جب ہوگا سارسی دنیا میں گژھِ اسلامی خلافت قائم جو یہود ہوں گے جو اس پر ایمان لائیں گے انہیں امان ملے گا جو ایمان نہیں لائیں گے انہیں کیا کیا جائے گا قتل کیا جائے گا بلکہ روایت میں آمد یوت آسی یمن یہودن ہند قتل و غارتک سلسل کہ اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی یہود چھپا رہے گا تو وہ پتھر بھی گواہی دے گا کہ میں پتکیشو یہود اس کو قتل کرو یہ آخرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حدیث میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہود کو ان دنوں صرف امان دو صورتوں ملے گی یا تو وہ قتل کیے جائیں گے یا وہ کس پر ایمان لائیں گے حضرت عیسیٰ پر مگر حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے
यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाएंगे, क्योंकि उस वक्त वो प्रचार और उस वक्त वो नुमाइंदगी ईसा किस दीन की करते होंगे, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन। तो यही वो बशारत है जो हदीसों में आती है कि एक वक्त आएगा जब इस्लामी इनकलाब इंसान बरपा, तो तमाम यहूद या तो मिटा दिए जाएंगे या तो वो क्या किए जाएंगे, या तो वो ईमान लाएंगे। तो यही यहाँ पर वइम मिन अहलिल किताब, एक भी अहली किताब, एक भी यहूदी ऐसा नहीं बचेगा इल्ला ला युमिनन नबी, जो कि आपकी रिसालत पर ईमान नहीं लाएगा। तो वो वक्त अभी आया नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कैसे मरेंगे, कैसे उनको कत्ल किया जाएगा, जबकि कुरान की ये पेशन गोई अभी पूरी। इससे पता चलता है कि अभी ईसा अलैहिस्सलाम को दोबारा आना है और अहली किताब और यहूद उन पर ईमान लाएंगे। और याद है जो ये मुसलमानों योतन हिंद अकीद कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या आज जिंदा निन, बल्कि ईसाइयों का एक बड़ा तबका भी इस बात का यकीन रखता है कि ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ ले जाए गए, तुम आए आसमान पर जिंदा तुलना। और इस हदीस में आता है, ये हदीस में ब्रोटे पोड़ कि अगर कहीं पत की यहूदी कयामत तम वक्त दी कोई गवाही कि मैं पत की यहूदी, ये कारण क्या, सिवाय एक दरख्त के जिसका हदीस में आया कि वो ज़क़ूम का दरख्त होगा। तथ पत की यहूदी आस, सिर्फ वो दरख्त इनको पनाह देगा, सो आस कंडन हिंद अशरब तथ सु योतन दी यहूदन क्या। और ये यकीन यहूद को आज भी है। निमजर अगर आज आप तारीख पढ़ोगे, इसराइलस में सारे को ज्यादा प्लांटेशन का अमी गुलिच, ये ज़क़ूम कर, उनको यकीन है मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदाकत पर, इसीलिए उन्होंने सबसे ज्यादा कुम कुल लगे, ताकि ये साथ ये वक्त ही निमो पनाह कम कुलिच, अमी कुलिच, ताकि हम बच जाएंगे। तो यहूद भी इस बात का यकीन रखते हैं कि ये वक्त आने वाला है। अल्लाह ताला फरमान, मैं सिर्फ इसी आयत का तर्जुमा दोबारा करूंगा क्योंकि वक्त को ज्यादा है। व इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका, याद करने के लायक वक्त है जब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हम आपको पूरा पूरा वापस लौटाएंगे, व राफ़िउका, और आपको बुलंद करेंगे, उठाएंगे, इलैया, अपनी तरफ, व मुताहिरुका मिनल लज़ीना कफ़रू, और आपको पाक करेंगे किन से, इन कुफार की साजिश और कुफार से, वजाइलुल लज़ीना तबऊका फ़ौक़ल लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा, और हम बनाएंगे उन लोगों को जो आपकी इत्तिबा करेंगे उनके ऊपर, यानी उनको गलबा सियासी भी और दलाइल के एतबार से भी अता करेंगे काफिरों के ऊपर, इला यौमिल क़ियामा, कहाँ तक, क़यामत तक। बहरहाल इसकी तफसील है कुछ, इंशाअल्लाह रहमान अगर अल्लाह जिंदगी तो कल हम इसकी तफसील पढ़ेंगे कि कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने इनके ऊपर इनको गालिब किया है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।